Yes, good morning class. I hope you all are fit and healthy, all of you. Any problems? I had thought so many are absent again, something happened. Okay, Nikita was not feeling well. Anyone else who's not feeling well? Gurdeep, now be punctual, okay? Gurdeep or Gurvinder? Gurvinder. Okay, so we had started the second chapter and I have been teaching you from the NCERT book, but today I will be taking the important notes because lot of time is being taken up when I'm doing line by line and we don't have so much of time. But I will be covering all the important topics. So we are taking the first topic of this chapter, that was what was the Soviet system, and I hope you will be able to answer if a question comes from this topic. Then in the second class I had taken two questions basically, which were why the Soviet Union became a great power or developed power after the Second World War. All the students who were absent, this is an important topic which you have missed on Saturday. So in that we had covered what were the reasons for Soviet Union becoming a superpower after Second World War. So we have seen certain developments within Soviet Union which made them as superpowers after Second World War. Then we had taken the other question on Saturday class only, that was why the Soviet Union system lagged behind the Western world in technology and infrastructure. So these two questions I have covered on Saturday, and these entire topic I have covered in a way that two questions are coming from that topic, and these two questions are really very important from your exam point of view, pre-boards or final exams. So you need to cover a topic according to the questions. So in a way I have taught you those topics. It means it includes two important questions. अगर आप वो दो क्वेश्चन कवर कर लेते हो, it means you have covered that entire topic. So please, those have missed the class, go through that, read that topic. I am not going to repeat it. I have told you 15th को two classes I have taken, but again I started once again. But I have told अब मैं कोई class repeat नहीं करूँगा because those students are coming regularly. उनका क्या हो जाता है, time waste होता है. So today the topic which I am covering, जिन्होंने नहीं किया था वो reading कर लेंगे. Today the topic would be Gorbachev and the disintegration. We will see what was the role of this personality into disintegration of USSR. So basically here we are talking about the disintegration of USSR, or you can also say Soviet Union. It is one and the same thing. So we will see these what was his role here. So I am not reading it from the NCERT. First I will cover this, then हम suddenly अगर 10-15 minutes बचते हैं, I will take a reading from your book. So it will be clear for you. Gorbachev and the disintegration. I am starting here. Mikhail Gorbachev, his name is Mikhail M-I-K-H-A-I-L. इसका नेम भी आ सकता है M-I-K-H-A-I-L. Mikhail Gorbachev became the General Secretary of the Soviet Union in 1985. He became the General Secretary in 1985. You have to remember the dates. That's why I am writing on the board, so it will be clear for you. And if I am telling that he was a general secretary, it means you can say he was a president or like a prime minister. Like we have a president and prime minister of our country. In the same way, this Mikhail Gorbachev in 1985 was elected as a general secretary, or you can say the president of Soviet Union. It means he was the most important person and leader of Soviet Union in 1985. So what he did, what he had done, what reforms he had brought, that is why we are studying him particularly. और कोई जनरल के बारे में तो नहीं पढ़ रहे हैं, but we are studying about this person because his role is very important when we talk about the disintegration of USSR or the collapse of USSR. So he was the General Secretary of Soviet Union in 1985. That is Communist Party. Whenever I am telling अगर ये he was a General Secretary of USSR in 1985, it means he was of which party? Which political party? Communist Party. Because there was only one party, there was no opposition party. तो ये Communist Party के leader थे इस time में 1985. So you have to remember Communist Party. Gorbachev initiated to reform the policies of economic and political system to democratize the system which were opposed to by the leaders within the Communist Party. Here what he did, there were various initiatives taken by Gorbachev to bring reforms in a political and economic system. वो चाहते थे जो political system और जो economic system USSR में चल रहा है उसमें क्या लाई जाए, reforms. Reforms means changes ले आई जाए, उसमें कुछ developments किए जाए, उसके किसके according, democracy के according, ताकि थोड़ी democratic
सोसाइटी हमारी हो सके। इट मींस वो क्या लाना चाहते थे, डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, राइट टू स्पीच। इट मींस जैसा वेस्टर्न वर्ल्ड में कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा था, ही वांटेड कि हाँ कम्युनिस्ट हमारा कम्युनलिज्म रहे, बट यहाँ पर जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, उनको क्या मिले, थोड़ा डेमोक्रेसी मिले, लिबरल डेमोक्रेसी मिले, उनको राइट टू स्पीच, उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में हो। तो क्या वो एक वर्ड क्या यूज करेंगे हम सब चीजों के लिए, डेमोक्रेटाइज, ठीक है, डेमोक्रेटिक वे में वो चाहते थे। And but this initiative of Gorbachev was opposed by the leaders of the Communist Party. हाँ, उन्हें क्या बोलते हैं हम, हार्डलाइनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्डलाइनर्स कौन होंगे, जो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि ये जो कम्युनलिज्म और सोशलिज्म हमारा चल रहा है यूएसएसआर में, हमें इसे ही फॉलो करना है, हमें इसे चेंज नहीं करना है। क्योंकि एक सेपरेट सोसाइटी थी, एक ग्रुप था जो बहुत डोमिनेंट और बहुत पावरफुल था, इनके पास बहुत पावर थी। अगर यहाँ पर रिफॉर्म्स होते इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तो इनकी पावर क्या हो जाती, कम हो जाती, इनका इन्फ्लुएंस सोसाइटी में कम हो जाता। तो ये जो हार्डलाइनर्स थे, ये क्या था, हमारा कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये नहीं चाहते थे कि ये रिफॉर्म्स करे कौन, गोरबाचेव, जबकि एक ही पार्टी के थे, बट इनकी जो थिंकिंग थी, इनकी थॉट्स थे, आइडियाज थे, डिफरेंट थे। इफ यू टॉक अबाउट द होल कम्युनिस्ट पार्टी, तो ही वांटेड टू ब्रिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, जहां पे डेमोक्रेसी आ सके, राइट टू स्पीच, लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में हो, इन अ वे इनका जो लाइफस्टाइल है लोगों का थोड़ा स्टैंडर्ड रेज हो सके, जैसा कहां चल रहा था, वेस्टर्न वर्ल्ड में चल रहा था। तो ये इस टाइप का सोसाइटी चाहते थे, ये कभी भी नहीं चाहते थे कि डिसइंटीग्रेशन हो, ही वांटेड यूएसएसआर एज इट इज रहे, बट यहाँ पर लोगों का थोड़ा सा क्या दी जाए, फ्रीडम दी जाए, ठीक है, ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक वर्ड में ही सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर चाहते थे सोसाइटी का, इसीलिए इन्होंने रिफॉर्म्स लाने चाहे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, बट दीज वर अपोज्ड बाय द कम्युनिस्ट पीपल और द हार्डलाइनर्स इनको हम बोलते हैं, बिकॉज ये नहीं चाहते थे कि इनका डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस यूएसएसआर में कम हो, ठीक है, बिकॉज दे वर एक्टिंग एज अ डिक्टेटर, तो दे वर एंजॉयिंग ऑल द फैसिलिटीज, ऑल द पावर्स दे हैड इन देयर हैंड, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करते थे, किसी का ओपिनियन नहीं सुनना था, दे वर नॉट अकाउंटेबल टू एनी पीपल और एनीवन। तो ये ऐसे ही सिस्टम को चलाना चाहते थे, बट दिस पर्सन वांटेड टू चेंज द सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन यूएसएसआर, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है फिर इनके बीच में, मींस क्या हो गया, एक टाइप से कॉन्फ्लिक्ट, वी कैन से एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। Gorbachev initiated to reform the policies of economic and political system to democratize the system, which were opposed by the leaders within the Communist Party. तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर के लीडर्स ने इसको अपोज किया मिखाइल गोर्बाचेव को। The people of the republic had been fed up with old sister rule of Soviet bloc. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो लोग थे सोवियत यूनियन के, they were fed up. Their life had become very difficult under the communism. जो कम्युनिज्म के अंदर उनका जो सोसाइटी में लाइफ चल रही थी लोगों की, वो बहुत डिफिकल्ट हो गई थी, और लोग क्या हो गए थे, पीपल फेड अप हो चुके थे, वो थक चुके थे इस टाइप की लाइफ से, जिसमें इतनी ज्यादा बाउंडेशंस थी, दे वर नॉट फ्री एट ऑल। बस उनको क्या होता था, फूड अवेलेबल था, उन्हें एजुकेशन थी, हेल्थ था, ऑल वर ट्रीटेड इक्वली, बिकॉज मैंने बताया था जो हमारा यूएसएसआर वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, बट इक्वालिटी के नाम पे क्या कर रहे थे हम, पॉपुलेशन को सप्रेस करके रखा हुआ था, किसी को हम ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, अगर वो टैलेंटेड भी है, उसके अंदर कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटीज है, स्टिल ही वाज नॉट अलाउड टू मूव अहेड, सबको इक्वल कर रखा था, ठीक है। तो ऐसे में क्या थी, जो हमारे अंदर पोटेंशियल था वो वहां का वहीं रह गया, ठीक है। तो लोग इस टाइप की लाइफ से, इस लाइफ स्ट्रक्चर से यूएसएसआर के, जिसके अंदर 15 कंट्रीज थी, जितनी भी रिपब्लिक थे, नाउ दे वर फेड अप। एक स्टेज आता है ना, झेलते रहे, जब तो उनको नहीं पता था, उनको लगता था दिस इज द बेस्ट, उनको क्या बताया गया था स्टार्टिंग से, दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, या दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो यूएसएसआर में चल रहा है। उस टाइम कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था कि उनको पता ही नहीं था कि वेस्ट में हाउ पीपल आर लिविंग, उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, दे व्हाट इज कैपिटलिज्म, दे वर अनअवेयर अबाउट इट। बस सडनली जब ये चीजें होती गई, हम 1985 तक टाइम पीरियड आ गया है, कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो गया था, तो धीरे धीरे पता चलने लगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में लाइफस्टाइल कैसा है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, डेमोक्रेसी क्या है, वहां पर लोगों को क्या पावर्स, क्या अपॉर्चुनिटीज वहां पर मिल रही है। तो ये जब चीजें जब पता लगने लगी, तो लोगों के बीच में क्या आने लगा, एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, देशभक्ति होती है कि हमें फ्रीडम चाहिए, जैसे हमारे अंदर आई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वी फॉट इंडिपेंडेंस पीरियड, जो हमने पढ़ा है फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसे ही यहाँ पर जो 15 कंट्रीज थी इंक्लूडिंग यूएसए, सॉरी रशिया, यूएसएसआर में, उनमें क्या होने लगा, एक नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट होने लगी कि हमको अब क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो मतलब हमें इससे क्या होना है, अलग होना है, हम इसके अंदर रहेंगे, बाउंडेशन में रहेंगे, हम कभी ग्रो नहीं हो पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू लिव अ लाइफ जैसे हम चाहते हैं, हमारे पीपल सप्रेस रहेंगे, बहुत डिफिकल्ट हो गई थी लाइफ एक्चुअली, तो फ्रस्ट्रेट हो गए थे टाइप से। नाउ दे वांटेड टू बी फ्री, दे वांटेड इंडिपेंडेंस, दे वांटेड टू
follow the capitalism, they did not want to anymore to follow communism. तो ये सब चीजें दिखाए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे लोग. That is why next point जो मैं पढ़ रहा हूँ वो इससे रिलेटेड है. The people of the republics. Here I am using the word republics means इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज थी उनको हम क्या बोलते थे? Republics बोलते थे. Okay. So people of republics had been fed up with old style rule of Soviet bloc, and in December finally in 1991 under the leadership of Boris Yeltsin. अब ये एक पर्सनैलिटी आ रहा है, इनका आगे हम डिस्कस करेंगे, बट अभी डायरेक्टली आ गया है. फाइनली ये देखेंगे हम यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई जब इन्होंने इनिशिएट किया इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. उसके बाद से और ज्यादा लोगों के बीच में क्या आ गया, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए. तो यहाँ पे 1991 में क्या हो जाता है हम देखते हैं. तो एक पर्सनैलिटी यहाँ पे बोरिस येल्टसिन, ये है बोरिस येल्टसिन, एंड इलेक्टेड लीडर. ये इलेक्टेड लीडर थे रशिया के. रशिया में इलेक्शंस हुए थे इस टाइम पे, एंड ही वाज एन इलेक्टेड लीडर ऑफ रशिया. ही वाज फ्रॉम रशिया, so he played a very important role in the disintegration of USSR in 1991. Under the leadership of Boris Yeltsin, an elected leader, Russia, Ukraine, Belarus declared themselves independent. याद रखेंगे तीन स्टेट्स जिन्होंने सबसे पहले इसमें इनिशिएटिव लिया, and these were the three important powerful republics of USSR. कौन सी है? रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस. इसमें बेल्टिक भी आता है, बेल्टिक स्टेट्स भी आती हैं, बट वो इंडिपेंडेंस के लिए सबसे पहले दे वर अवेयर. बट हम जब बात करते हैं परमानेंटली अलग होने की, तो तीन स्टेट्स के नाम आते हैं, रशिया, यूक्रेन एंड Belarus. They declared themselves independent. They said no more we are a part of USSR, no more we are following the communism or the socialism. Now we are free, we are an independent state, and they started following capitalism. So they were making a shift. अब उस शिफ्ट में क्या प्रॉब्लम आई वो हम कॉन्सिक्वेंसेस में पढ़ेंगे. इतना स्मूथ नहीं था, इतना इजी कोई ये नहीं था कि मैंने दो चीज थी, मैंने ये ले ली, ये अच्छी नहीं लगी, मैंने दूसरी ले ली. हमारी कंट्री में वी आर हैविंग अ ट्रांजैक्शन ऑफ आइडियोलॉजी. हम कम्युनिज्म फॉलो करते आ रहे हैं इतने सालों से, सडनली वी वांट टू फॉलो कैपिटलिज्म, तो देयर विल बी वेरियस प्रॉब्लम्स कमिंग अप, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल. उसकी वजह से बहुत सारी क्राइसिस आएंगे इन द वर्ल्ड इन दीज रिपब्लिक्स दैट विल स्टडी लेटर ऑन. बट अभी आपको इतना समझना है, मिखाइल गोर्बाचेव का जो मैंने बताया, फिर 1991 में बोरिस येल्टसिन जो है एक इलेक्टेड लीडर रशिया के. ही वाज अ पावरफुल पर्सन एंड इन्फ्लुएंशियल थे, लोग फॉलो करते थे, लोग हैड पीपल हैड फेथ ऑन हिम. So finally he decided that we are going to be apart from this USSR, and this Russia, Belarus and Ukraine decided that now we are an independent state. सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया. तो एक टाइम से यहाँ से क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया कुछ पार्ट. एंड ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट क्या थे, इसकी यूनिट्स थी, पावरफुल थे तीनों. तो यहाँ पे अब क्वेश्चन राइजेस, व्हाई रिफॉर्म्स. अब यहाँ पे चलो ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया ऐसा ऐसा हुआ, बट अगर हम फिर से वापस यहाँ पे आ जाए 1985 में, अगर ये रिफॉर्म्स चाहते थे तो क्वेश्चन राइजेस, क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में, व्हाई रिफॉर्म्स. तो रिफॉर्म्स की क्या नीड्स थी ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया है. क्या डिस्कस किया दावा, रिफॉर्म्स के क्या रीजन हो सकते हैं. विकास को समझा रहा है रिफॉर्म्स. यहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव को क्यों लगा कि दैट वी रिक्वायर रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी. सलोनी, रिफॉर्म्स की क्या नीड थी. आई वांट यू टू स्पीक अप. ऐसा नहीं है कंटिन्यूअसली आई एम स्पीकिंग, बस सम पीपल आर स्लीपिंग. निकिता, because the USSR was lagging behind in a lot of things from the Western world. as compared to economic and political conditions, बहुत capitalist में अलग थी and socialism में अलग थी. As here all the public goods, public resources, all the resources were controlled by the state, है ना. And this society was based on the idea of equality. Equality मतलब suppress किया हुआ था. तो this was the reason. यहाँ पे गोर्बाचेव को लगता है कि we need reforms. अगर हमें किसको फॉलो करना है, किसके इक्वल हेड टू हेड रहना है, अगर हमें किसके यूएसए के. सबसे पहले ये माइंड में रखना, गोर्बाचेव नेवर वांटेड कि डिसइंटीग्रेशन हो. ही वांटेड रिफॉर्म्स ही वांटेड इन अ पॉजिटिव वे कि हम हेड टू हेड हो सके किसके, यूएस. हम ओके इफ इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड आर्सेनल्स, वेपन्स, वी आर मूविंग हेड टू हेड विद US. In terms of other military, we are head to head with US. But when it comes to with the society of USSR and US, so there was a huge difference. Where in US people were living a very healthy life, here people were suppressed. They were not happy. They were living a very difficult life under communism. तो ये difference देख के here Gorbachev thought कि इस sector में भी we should bring some changes and we should give some freedom to the society and the people of
USSR. तो ये आइडिया था उनका फॉर वायर रिफॉर्म्स. सो आई एम रीडिंग दैट. वायर रिफॉर्म का सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, टू कीप USSR वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द वेस्ट वर्ल्ड. सबसे पहले एक रिफॉर्म इसलिए करना चाहते थे ताकि लोग अवेयर रहें कि वेस्टर्न वर्ल्ड में किस टाइप की टेक्नोलॉजी आ गई है, किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइफस्टाइल उनका कैसा है. सो इस तरीके से अगर उनको इनके बारे में पता होता तो इनकी लाइफ भी ऐसी हो सकती थी. सो ही वांटेड टू बी अपग्रेडेड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. Life of people had become difficult under communalism as the needs, desires and aspirations of the people were not fulfilled as in Western world. Western world में needs, demand, desires and representation of the people were there in the government. सबकी एक अपनी importance थी. They were right to vote. They represented and elected their own representatives. But this was not the case of USSR. So here life of the people had become difficult under communalism. As the needs, desires and aspirations of the people were not fulfilled as in the Western world, well followed ideology of capitalism. क्योंकि जो Western world था, they were following the ideology of capitalism, जिसका मतलब था democracy, liberal democracy and freedom of expression and speech वहाँ पर available था Western world में. और अगर हम Eastern world की बात करते हैं तो ये चीजें absent थी, जिसकी वजह से people were facing lot of problems. फिर एक चीज होती है यहाँ पर, ये तो वायर फॉर्म्स का आंसर हो गया. उसी में आपको क्या होता है, तख्ता पलट. सडन एक सिचुएशन में कंप्लीटली चेंज आ जाना. तो एक इंसिडेंट होता है. फिर जब ये सब चल रहा था, अ कूप टुक प्लेस इन 1991. इसको हम क्या बोलते हैं, दिसंबर कूप भी बोल सकते हैं. अगर आ सकता है एग्जाम में दिसंबर कूप का इंसिडेंट क्या है, तो अ कूप टुक प्लेस, COUP, इसको कूप बोलते हैं. तख्ता पलटना, सिचुएशन में सडन चेंज, अपसाइड डाउन हो जाना कोई चीज. तो क्या हो जाता है, अ कूप टेक प्लेस इन 1991 बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स. ऑगस्ट कूप बोलते हैं इसको. कम्युनिस्ट पार्टी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी टू स्टॉप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पुट अप बाय द गोर्बाचेव एज ही वाज द प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी दिस मिखाइल गोर्बाचेव एंड ही हैज ऑप्टेड फॉर द इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. बता दिया क्यों चेंजेस कर रहे थे वो पढ़ लिया. और उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस. एंड हु आर अगेंस्ट दिस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस बाय गोर्बाचेव, कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स, हार्डलाइनर्स बोलते हैं उनको, जो ब्लाइंडली और बहुत स्ट्रांगली किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं. तो जो ये हार्डलाइनर्स थे, दे वर अगेंस्ट दिस आइडियोलॉजी एंड दिस रिफॉर्म्स ऑफ गोर्बाचेव. तो इन्होंने क्या किया, एक कूप हुआ, इसको बोलते हैं दिसंबर कूप, सॉरी अगस्त कूप, ठीक है. वेयर ही दीस हार्डलाइनर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी दे डिक्लेयर्ड इमरजेंसी. इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की, इमरजेंसी में क्या होगा, जो ये रिफॉर्म्स हो रहे थे इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये क्या होगा, स्टॉप हो गए. एक डिस्कशन हुआ, मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने क्या डिसाइड लिया कि हम इमरजेंसी अनाउंस कर रहे हैं. इस इमरजेंसी को हम क्या बोलते हैं, कूप ऑफ अगस्त. और ये कूप ऑफ अगस्त क्यों हुआ, बिकॉज़ दे वांटेड टू स्टॉप द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो किसके अंडर हो रहे थे, मिखाइल गोर्बाचेव के. ठीक है, तो उसकी पार्टी के जो हार्डलाइनर्स हैं उन्होंने ही ये इंसिडेंट में पार्टिसिपेट किया. टू स्टॉप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पुट अप बाय द गोर्बाचेव. हियर जब ये कूप हुआ, जब इमरजेंसी लगा दी, एट दिस मोमेंट एक जो ये हमने बात की बोरिस येल्त्सिन, इनकी एंट्री होती है. ये तो मैंने आपको बता दिया पहले, ऐसे ऐसे तरीके से इंडिपेंडेंस मिली. बट बेसिकली जब इन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए तो उसके अगेंस्ट कौन हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई. उनकी जो अपनी पार्टी थी उन्होंने मिलकर के इमरजेंसी अनाउंस कर दी. इमरजेंसी अनाउंस की तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्या हो गए, वहीं स्टेबल हो गए, रुक गए वहीं पर. बिकॉज जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे, दे डिड नॉट वांटेड दिस चेंजेस. क्यों, दे वांटेड कि हमारा जो डोमिनेंस है, जो हम जितने स्ट्रांग है, हम इसी तरीके से अपनी अथॉरिटी को मेंटेन रखें. यूएसएसआर के अंदर जो रिपब्लिक्स थे. बट गोर्बाचेव बहुत तेज आगे बढ़ रहा था, तो इसको रोकने के लिए इमरजेंसी अनाउंस कर दी. कब, 1991 अगस्त, जिसको क्या कहा हमने, अगस्त कूप. ठीक है. अब क्या होता है, इसी मोमेंट में जब ये सब चल रहा था, इमरजेंसी लग गई, तो एक पर्सनैलिटी आ रहे हैं जिनका नाम यही है, बोरिस येल्त्सिन इमर्ज एज अ नेशनल हीरो. तो 1 मार्क में फिल्म बैंक में आ सकता है. इनको हमेशा ये कहा जाता है, एट दिस मोमेंट ही इमर्ज्ड as a national hero and he was the elected leader of Russia. ऐसे नहीं थे कि लोगों ने पॉपुलर कर दिया था. He was elected member of from Russia. ठीक है. He opposed the coup of communist hardliners. तो ये अगेंस्ट खड़ा हो गया. बोरिस येल्त्सिन, he was अगेंस्ट. इसको एक तो सपोर्ट था ही पीपल का. He was the elected member. इसको इलेक्ट किया मींस he is influential. लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं. So he opposed, जो कूप इन्होंने किया कम्युनिस्ट पार्टी ने, इसने उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया. मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर्स थे उनके अगेंस्ट बोरिस येल्त्सिन stood up. He opposed the coup of communist hardliners. Under his leadership, the most important and powerful members like Russia, Ukraine and Baltics declared themselves independent. Baltics we can also write Belarus here.
सो इन्हीं की जो लीडरशिप के अंडर है उस टाइम पे जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने तभी क्या कहा, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस आर नो मोर द मेंबर ऑफ यूएसएसआर, और अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया इन 1991. It means they started following capitalism, democracy, liberal democracy, or their people had the right to speech and expression. It means they started following the structure of capitalism. They said now we are free from your rule. We are not no more a part of Soviet Union. We are separate. तो ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनकी लीडरशिप के अंडर ये होता है कि रशिया, यूक्रेन और बेलारूस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाते हैं. दे ब्रोक अवे फ्रॉम यूएसएसआर. यहाँ से बिगिनिंग शुरू होती है. ये डिसइंटीग्रेट होता है ना. इफ यू आर बिल्डिंग एक कार्ड की बिल्डिंग बनाई, एक कार्ड हटा दिया तो सारे कार्ड स्लोली गिर जाएंगे. तो वही यहाँ पे हुआ, जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 नेशंस थे वही हट गए, वीक वाले तो ऑफ कोर्स फिर हट जाएंगे. तो ऐसे डिसइंटीग्रेशन इसका स्टार्ट हो जाता है. सो यहाँ तक ये रेटिंग लो आप लोग, इसका मैं बताता हूँ कहाँ तक है. So now on page number 20, the first paragraph, the declaration on the disintegration of USSR and the formation of the Commonwealth of Independent States. तो अब जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, जिससे एक स्टेट्स अलग हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया. उस ग्रुप का नाम क्या है हमारा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS टॉपिक होगा आपका. Came as a surprise to other republics, especially to the Central Asian ones. The expulsion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding members of CIS. So they became the members of CIS. Russia was now accepted as a successor state. अब जो माना जाता है, जो USSR का था, जितनी भी ट्रीटीज इनकी साइन थी, जितने भी एग्रीमेंट साइन थे एट द वर्ल्ड लेवल, as it was also the member of United Nations Security Council. तो इसका सक्सेसर क्या होता है, राजा का बाद उसका बेटा कौन बनता था, बेटा किंग बनता था. पहले सक्सेसर सिस्टम होता था. तो यहाँ पे ऐसे यूएसएसआर का सक्सेसर कौन बना, रशिया बना. तो जितने भी वेपन्स थे, न्यूक्लियर मिसाइल्स थी, ठीक है, आर्म्स एम्युनिशन थे, जितनी पावर्स थी, जितनी ट्रीटीज थी, all were handed over from USSR to Russia. एक because this was the most dominant nation, तो सारी पावर्स किसके पास चली गई, रशिया के पास. ऑल्दो अब यूएसएसआर जो है एग्जिस्ट नहीं करता था, बट स्टिल देयर वर वेरियस ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स साइंड एट द वर्ल्ड लेवल. और ऑल्सो यूएन का ये सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर था, जो बहुत इंपॉर्टेंट परमानेंट मेंबर होता है. तो वो यूएसएसआर की जगह क्या हो गया, रशिया हो गया. तो एक टाइप से जो ये बाइपोलैरिटी चल रहा था ये तो एंड हो गया, बट वो पावर्स किसके पास आ गई, रशिया के पास आ गई. ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, बाइपोलैरिटी नहीं चल रहा है. इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थे यूएस और यूएसएसआर के बीच में, वो खत्म हो गया. रशिया ने बहुत सारी ट्रीटीज साइन करी यूएस के साथ टू ब्रिंग पीस एंड हार्मोनी बिटवीन दीस टू नेशंस. बट यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसने एक रशिया ने एक सक्सेसर का तरह काम किया है आफ्टर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन. वही रीड कर रहा हूँ. रशिया वाज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन. इट इनहेरिटेड बोलते हैं हम, पेरेंट्स के बाद प्रॉपर्टी भी होती है, फादर के बाद जैसे बेटे को मिल जाते हैं तो इनहेरिट कर लेते हैं. ठीक है, तो इट इनहेरिट द सोवियत सीट इन द यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल. रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज. रशिया ने सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज को एक्सेप्ट किया and commitments of the Soviet Union. It took over as the only nuclear state of post-Soviet space. जो post Soviet states थी उनमें न्यूक्लियर पावर सारी किसको मिल गई, रशिया को मिल गई. And carried out some nuclear disarmament measures. और कुछ disarmament treaties साइन की उन्होंने with US. The old Soviet Union was thus dead and buried. जो old Soviet system था वो dead हो चुका था, buried हो चुका था, shattered हो चुका था. बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रीटीज वर्ल्ड में जो उसका एक स्टैंड था वो किसने ले लिया था, रशिया ने ले लिया था. ऑल्दो इट वाज नॉट एज पावरफुल जैसे यूएसएसआर था, बट स्टिल जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ट्रीटीज थी, यूएन में जो स्टैंड था वो रशिया के पास चले गए, वेपन्स रशिया के पास. ठीक है, so this was the topic which we have covered till now. The next topic which I am covering, why did the Soviet Union disintegrate. इसमें I am just taking up the important points. We'll go through the reading. बहुत easy है. If I go line by line, it will take lot of time. तो ये वाला topic you will cover at home, और यहाँ पे भी यहाँ तक you will read that chapter. Okay. जो एक consequences ये बाद में करेंगे, but today I am covering this topic in a short the notes which I have made. Okay. So इसको read कर लेना, बता दूँगा तो it will be easier for you to read it. So the next question which arises now, why did the Soviet Union disintegrate? Already you know now everything. वो चीजें repeat हो रही हैं ताकि एक आइडिया क्लियर, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. Why did the Soviet Union disintegrate? Give any 6 factors. 2 marks में आता है. Give any 2 factors. ठीक है, 4 marks में आ सकता है. तो accordingly you should know what are the important things you should mention.
तो सबसे पहले जो इस चीज में आता है कि व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, तो सबसे पहली चीज हमारे क्या आता है, मैंने बताया था, देयर वाज नो आउटसाइड मिलिट्री अटैक ऑन यूएसएसआर, किसी बाहर की पावर ने उन्हें ओवररूल नहीं किया है, वो पावर नहीं किया है। जो डिसइंटीग्रेट हुआ है वो किस वजह से हुआ है, उसकी इंटरनल वीकनेस, वो अपने आप में कमजोर हो गया था अंदर से। देयर वाज नो यूनिटी अमंग्स द रिपब्लिक्स और द मेंबर्स ऑफ यूएसएसआर, तो सबसे बड़ी कमी थी। तभी हम बोलते हैं ना यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे यूनिटी नहीं बची थी क्योंकि सब में एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी, सब एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते थे जो उन्हें लग रहा था पॉसिबल नहीं है कम्युनलिज्म के अंदर, बहुत ज्यादा सप्रेस किया जा रहा था, डिक्टेटर की तरह एक्ट किया जा रहा था। तो इन चीजों की वजह से वीकनेस आ गई इंटरनली विद इन द यूएसएसआर सिस्टम। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस failed to meet the aspirations of the people were responsible for the collapse of this Soviet system. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है, सोवियत सिस्टम का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीकनेस आ गई थी इंटरनली। इंटरनल वीकनेस क्यों आई, क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था दैट फेल्ड टू सेटिस्फाई द नीड्स वांट्स एंड डिजायर्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। इंडिया में भी अगर एज अ सिटीजन नाउ वी स्टार्ट फीलिंग कि हमारी नीड्स डिमांड्स, हमें एज अ ह्यूमन हमारी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है, हमारे साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा एजिटेशंस डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे हमारी पूरी कंट्री में। अभी फार्म लॉ चल रहा है, देख रहे हैं, तो क्या फार्मर्स को क्या लग रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एज अ ह्यूमन सिटीजन, उनके साथ चीजें गलत हो रही है, सो दे आर प्रोटेस्टिंग, बट दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। यहाँ पे ये चीज है, पर वहां पर उनके साथ अगर लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं बोल भी नहीं सकता हूं, तो ऐसे तो सफोकेशन हो जाएगी इंसान को, कब तक ऐसे रहेंगे। तो ये दिस वाज द रीजन, अंदर वीकनेस थी पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम में, जिसके अगेंस्ट लोग बोल नहीं सकते थे, उसकी वजह से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट। फिर एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांसेस ऑफ द वेस्ट। जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे उनको नॉलेजेबल मींस नाउ दे वर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेस्टर्न वर्ल्ड, पीपल हैड स्टार्टेड ट्रैवलिंग, इधर से उधर ट्रैवल कर रहे थे, अकाउंट्स लिखे जाते थे पहले हिस्ट्री के जो सीन ट्रैवलर्स जो होते थे, तो उन्हें वेस्टर्न लाइफ को कंपेयर करते थे अपनी ईस्टर्न लाइफ से, तो वो बहुत ज्यादा एक मार्जिन उन्हें दिखता था कि इतनी ज्यादा डिफरेंस, वहां पे इतनी फ्रीडम है, इतनी इक्वालिटी, इतनी अपॉर्चुनिटीज है, they have the representation in the government, they have the right to vote, they elect their government, तो इतना से है उनका about the government and about their society। तो यहाँ से जब नॉलेज बढ़ने लगा तो लोगों के बीच में डिससेटिस्फैक्शन और एक फीलिंग ऑफ प्रोटेस्ट, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अरोज होने लगी, ठीक है, इंक्रीज होने लगी। अगर उनको ये पता चलता कि वेस्ट में भी लाइफस्टाइल सेम है, तो कभी एजुकेशन होता, कभी ब्रेकअप होता इनका नहीं होता। तो जब वो कंपेयर करते थे अपने लाइफ को, बोलते थे हमें भी ऐसी लाइफ चाहिए, स्पेशली यूरोप। चलिए ये तो बहुत दूर था, इनको लगता था हमें ऐसे रहना है, बट हाफ जर्मनी से डिवाइडेड करा, उनको लगता था ये वॉल बनेंगे, वॉल की इधर हमारी लाइफ इतनी डिफिकल्ट है, वॉल की इधर लाइफ इतनी कंफर्टेबल है। तो यहाँ से ज्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ यूरोप के पार्ट से, ठीक है, क्योंकि जो वेस्टर्न जो ईस्टर्न वाला यूरोप जो यूएसएसआर के साथ मर्ज हो रहा था, उन रिपब्लिक्स में ज्यादा एजिटेशन प्रोटेस्ट होने लगे, बिकॉज दे वर वेरी क्लोज टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। यहाँ पे वो अपने आसपास नेबर में देख रहे थे किस टाइप का लाइफस्टाइल है, सो दे वांटेड दैट लाइफस्टाइल, जिसके लिए ये डिसइंटीग्रेशन होता है बेसिकली। ओके, so 2 points I have told। पहला क्या है, इंटरनल वीकनेसेस, बिकॉज पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम फुलफिल नहीं कर पा रहा था सिटीजन्स की नीड्स डिमांड, प्लीज पॉइंट्स को अच्छे सुन लो, आंसर्स में लिखना होगा आपको। फिर दूसरा मैंने बता दिया, ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे वो क्या होते थे, नॉलेजेबल, उनको इंफॉर्मेशन मिलने लगी थी, सो दे स्टार्टेड कंपेयरिंग द वेस्टर्न वर्ल्ड। थर्ड पॉइंट, गोरबाचेव रिफॉर्म प्रॉमिस टू डील विद दीस प्रॉब्लम्स बट स्लो रेट ऑफ गोरबाचेव। अब यहाँ पे गोरबाचेव जब आए थे 1985 में, तो एक पॉजिटिविटी लेकर के आए, वेयर पीपल स्टार्टेड थिंकिंग हमको डिसइंटीग्रेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज गोरबाचेव विल ब्रिंग दोस इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, चेंजेस लाएंगे हमारी सोसाइटी में व्हिच वी वांट, व्हिच वी कैन हैव सेम एज वेस्टर्न वर्ल्ड। जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोसाइटी सिस्टम चल रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, सेम रिफॉर्म्स विल बी मेड इन आवर सोसाइटी, इन आवर रिपब्लिक्स आल्सो। बट उनको लगा सिटीजन्स बहुत जल्दी में थे, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग अरोज हो चुकी थी, उनको फ्रीडम चाहिए थी, लाइफस्टाइल वेस्टर्न चाहिए था, तो उनको लगा जो गोरबाचेव रिफॉर्म्स कर रहे थे वो क्या थे, बहुत स्लो थे। इसमें इनके अगेंस्ट यहाँ पे क्या कहते हैं, गोरबाचेव अकेले क्यों पड़ गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी तो मैंने बता दिया इनके अगेंस्ट थी हमेशा से, इनके जो प्लान्स थे उसके अगेंस्ट थी, पर जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे थे वो भी इनके अगेंस्ट हो जाते हैं बाद में। वो क्यों जाते हैं, उनको लगता है जो ये मिखाइल गोरबाचेव जो रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं हमारी सोसाइटी में, वेस्टर्न वर्ल्ड डेमोक्रेसी जो लाना चाह रहे हैं, वो स्टेप बहुत स्लो ले रहे हैं। हम बोल रहे हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वी कैन नॉट फेस सो मेनी, मतलब जो उनकी एक हार्ड लाइफ चल रही थी वो उसको और ज्यादा फेस नहीं करना चाहते थे, उनको बहुत आगे स्पीड में चलना था। तो दे सेड
जो गोरबाचे थे उनका बहुत प्रोसेस जो था बहुत स्लो था, तो लोग उनसे अलग हो गए, उनपे जो फेथ था, जो ट्रस्ट था, वो लोगों का खत्म हो गया। तो और जो इनकी अपनी पार्टी के लोग थे वो तो ऑलरेडी इनसे नाराज थे ही, दे वर ऑलरेडी अलूफ फ्रॉम हिम, इसके अगेंस्ट थे इनकी पॉलिसीज के, तो ये अकेले हो गए यहाँ पर। तो जो रिफॉर्म्स चाहते थे नहीं कर पाए, तो एक ये रीजन भी रहा। अगर हम डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं, गोरबाचेज रिफॉर्म प्रॉमिस टू डील विद दीस प्रॉब्लम्स बट स्लो रेट ऑफ गोरबाचेज रिफॉर्म्स, तो एक ये रीजन भी हो गया। फिर है शॉर्टेजेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, ये हमने सैटरडे को पढ़ा था। क्या बताया था मैंने खुशी? यूएसएसआर वाज वॉर विद अफगानिस्तान फ्रॉम 1979 to 1989 for 10 long years and their army which was the most powerful army, रेड आर्मी, वो भी हार रही थी फाइनली, वो वापस आई थी। बहुत शर्मनाक बात थी क्योंकि बहुत पावरफुल माना जाता था रेड आर्मी को जो रशिया की थी। तो वो 10 इयर्स में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ। अब कोई कंट्री बाहर जाती है तो उनका एक्सपेंडिचर बहुत हाई होता है, आर्म्स आर्सनल्स वेपन्स का तो यूज है ही, बट अगर वो रह भी रहे बाहर तो उसका भी एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा, वी रिक्वायर लॉट ऑफ इकोनॉमी टू फाइट अ वॉर, बट 10 लॉन्ग इयर्स इतना ज्यादा बाहर रहना, उसकी वजह से भी इनकी इकोनॉमी बहुत वीक हो गई। इकोनॉमी वीक हुई तो हमारे क्या हो गए, कंज्यूमर गुड्स क्या हो गए थे, लेस हो गए थे, बिकॉज जो प्रोडक्शन उनकी इंडस्ट्रीज में होता था वो प्रोडक्शन क्या हो गया था, रुक गया था, स्टैग्नेंट हो गया था, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, पैसा नहीं था, तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में नहीं हो पाया। जब कंज्यूमर गुड्स मार्केट में नहीं आएंगे, फूड को भी ले लो आप, कोई छोटी चीज जो हम डेली नेसेसिटीज है हमारी, वो जब हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमें कहां से मंगानी पड़ेगी, बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट करते रहे और इकोनॉमी लॉस होता गया। इस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम हमारा क्या होता जा रहा है, बहुत वीक होता जा रहा है। वी आर नाउ मोर डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज फॉर द इंपोर्ट्स ऑफ बेसिक कंज्यूमर गुड्स भी। कोई बड़ी मशीनरी होती तो मान लेता, बेसिक कंज्यूमर गुड्स आई टोल्ड देम, एक पिन से लेकर के एक कार तक भी पहले कहां बनती थी, यूएसएसआर के अंदर ही बनती थी, बट अब क्या होने लगा, नॉर्मल से फूड ग्रेन्स तक भी बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। तो इस वजह से बहुत इकोनॉमी लॉस होती गई। एक रीजन ये भी रहा। डिसइंटीग्रेशन कोई एक फैक्टर की वजह से नहीं हो सकता है, हर तरफ से यूएसएसआर वीक होता जा रहा था, तो इकोनॉमिकली भी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। सोवियत यूनियन वाज यूज मच ऑफ इट्स न्यूक्लियर एंड मिलिट्री डेवलपमेंट। जो इकोनॉमी थी सोवियत यूनियन की, उसने बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया था ऑन इंक्रीजिंग देयर न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिलिट्री डेवलपमेंट्स। मिलिट्री के जो न्यू इक्विपमेंट्स थे, मैंने बताया ना, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर देयर वाज अ रेस ऑफ आर्म्स, आर्म रेस बोला है, आर्म रेस चल रही थी। यूएस के टक्कर में आने के लिए क्या कर रहे थे, सारी इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट कहां डाल रहे थे, वेपन्स को इंक्रीज करने में, मिलिट्री के न्यू इक्विपमेंट्स को बनाने में और खरीदने में। उसकी वजह से इकोनॉमी जो बेसिक जहां लोगों के लिए इकोनॉमी की जरूरत थी, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जो इकोनॉमिक एडवांसमेंट चाहिए था वो नहीं हो रहा था, बस मिलिट्री हम इंक्रीज करते जा रहे थे। तो ये भी एक वीकनेस रही यूएसएसआर की। So these were the some of the important reasons when we say why did the Soviet Union disintegrate. So now you start reading these paragraphs, the same points you'll find here. Okay, start from.